Success Mantra. We shape future. Hello students, my name is Abhay Singh and I welcome you all in another important session of current affairs. And in this particular session we will be basically dealing with the Election Commission of India. So recently Election Commission of India has organized one of the biggest festival of a democracy, that is 18th Lok Sabha elections, and for that particular reason this particular constitutional body becomes very important. So in this particular video we will try to cover each and everything in very detail. We will discuss about Election Commission of India, powers, compositions and other constitutional aspects which are related to Election Commission of India. So before beginning this topic or before starting this particular topic, I'll just say this is a very important topic. So topic को start करने से पहले आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और हम शुरू करते हैं एक बहुत ही important topic जिसका नाम है Election Commission of India. So students, Election Commission of India के बारे में जैसा आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, Election Commission of India is a constitutional body. So this is first and the relevant information that you have to keep in your mind, that it is a constitutional body. Now why Election Commission of India is a constitutional body? So the reason is very simple, because Article 324 of Indian Constitution talks about the Election Commission of India, that there should be an Election Commission of India, and Article 324 basically provides power to conduct or power to organize elections to the parliament, elections to the state legislative assembly, president, and elections of president and vice president. So basically you have to keep in mind another important information, that it is the responsibility of Election Commission of India to conduct the elections for the parliament. Number one, parliament. Then we have state legislative assembly, then it is the responsibility of Election Commission of India to conduct the elections for the office of president and vice president. So this is the main responsibility of Election Commission of India that we have discussed, that it has the responsibility to conduct the elections for the parliament and state legislative assemblies and for the offices of president and vice president. So before going in deep in this particular topic, we will discuss few important aspects or few historically important points about the Election Commission of India. So let's move into those particular points. So now you cannot afford to miss this particular information, that Article 324 talks about the Election Commission of India, and most of the time this particular question has been asked in various entrance examination, that which article of Indian Constitution talks about the Election Commission of India, and the reason is very simple, because Election Commission of India is a constitutional body. So let's start with the composition and other things about Election Commission of India. So with the enforcement of Constitution of India on 26th of January 1950, this particular body came into existence, that is Election Commission of India. So we have to remember the name of the first Election Commissioner of India. So the first Election Commissioner of India was first Election Commissioner India के कौन थे? Mr. Sukumar. So Sukumar Sen was the first Chief Election Commissioner of India. और इनिशियली जब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, फिर अब इसमें फर्दर चेंजेस कब कब किए गए तो वो हमारे लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है. सो फ्रॉम 1950 टू 15th of October 1989, 15th October 1989 तक it was a single member body. Then
बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वर्कलोड इसमें बेसिकली डिसाइड किया गया कि हम लोग 2 मेंबर्स और ऐड कर देंगे, देन इट बिकेम अ 3 मेंबर बॉडी। फिर बहुत लंबे टाइम तक इट वाज अ 3 मेंबर बॉडी, फिर उसमें से कुछ जो अदर पर्सन्स अपॉइंट किए गए थे उनको हटा करके 1993 में इट बिकेम अ 3 मेंबर बॉडी। सो फ्रॉम 1993 टिल 2024 अभी तक इट इज अ 3 मेंबर बॉडी। यू हैव टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन दैट एट दिस गिवन मोमेंट see the composition of इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कॉम्पोजिशन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन commissioners. So this is the current composition of the Election Commission of India. It is a 3-member body, 1 chief election commissioner and 2 election commissioners. So this is also very relevant information. This question again has been asked in so many examination and so many entrance examination. So you have to remember this information as well. Now moving on to the next important aspect of this particular topic, that who is the main authority or which authority appoints the election commissioner of India. So we will cover 3 important aspects in next part of this video, that is appointment, removal and tenure. So let's start with these 3 aspects. So ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोग लिख ही चुके हैं कि दैट सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। सो इसे अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब हम सीधे आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है? So the appointment of chief election commissioner and election commissioners is made by the president of India. So आप याद रखेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक चीज यहां पे आप लोगों को और याद रखनी है कि अपॉइंटमेंट करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, बट किसका अपॉइंटमेंट करना है, दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन वेस्टेड विद, और दिस पर्टिकुलर पावर हैज बीन वेस्टेड विद द सिलेक्शन कमिटी। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बाद में डील करेंगे और वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर वीडियो का। सो अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका टेन्योर कितना होता है? अब टेन्योर कितना होता है इनका? सो टेन्योर बेसिकली होता है 6 years और 65 years। 6 years और 65 years। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज ऐड कर दिया जाता है 6 years और 65 years के बाद में, दैट इज विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर। Now what do we understand by this particular phrase that 6 years or 65 years, whichever is earlier? Take this one example to understand this concept in a better way. Suppose a person was appointed as the Chief Election Commissioner of India when he was 61 years old. So now as per this rule he has been appointed for a period of 6 years or 65 years. तो अब देखिए, अब इन दोनों चीजों में से जो चीज पहले पूरी हो जाएगी वहीं पर उसका टेन्योर इलेक्शन कमिश्नर का खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम 6 years में 61 years में अपॉइंटमेंट हुआ है और इसमें अगर हम 6 years ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 67 years। तो अब देखिए ये रूल क्या कह रहा है कि 6 years और 65 years में से जो चीज पहले हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि 6 year का टेन्योर पूरा करने से पहले इस इलेक्शन कमिश्नर की 65 हो जाएगी, तो इसी के साथ इनका जो टेन्योर होगा वो पूरा हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एस्पेक्ट भी कवर कर लेते हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट 57 की एज में हुआ, तो अब मान लेते हैं 57 की एज में अगर इनका अपॉइंटमेंट होता है तो 6 years का टेन्योर जब इनका कंप्लीट होगा तो इनकी एज कितनी होगी? 63 years। सो अब यहां पे क्या हो रहा है कि 6 years का टेन्योर पहले कंप्लीट हो जा रहा है 65 years कंप्लीट होने से पहले। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि 6 years का टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी एज 65 हो जा रही थी। सो 6 years और 65 years में से जो भी चीज पहले कंप्लीट होगी इनका जो टेन्योर है वो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम इज दैट अब इनका रिमूवल कैसे होगा? इनका अपॉइंटमेंट हो गया, इनका टेन्योर हमें पता चल गया,
अब टेन्योर के बीच में अगर इन्हें हटाना होगा, इन्हें रिमूव करना हो, तो उसका प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है उसे भी हम देख लेते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सब कुछ पता है. ठीक है, तो अब हम आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से. अब हम बात कर लेते हैं रिमूवल की, कि इनका रिमूवल कैसे होता है. रिमूवल के सिर्फ 2 ग्राउंड हैं, याद रखिएगा. इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राउंड हैं. दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. मतलब आप जब आपके पास जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जब चार्ज था, तब आपने ऑफिस में रहते हुए मिसबिहेव किया, या ये चीज प्रूव हो गई है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड कर सकें. सो इन दोनों ही ग्राउंड्स पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिमूवल है वो हो सकता है. ठीक है, तो अब हमने अपॉइंटमेंट कवर कर लिया, हमने टेन्योर कंप्लीट कर लिया, हमने रिमूवल भी कंप्लीट कर लिया. रिमूवल के 2 ग्राउंड जो थे प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, हमने उन्हें भी कवर कर लिया. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक चीज आप लोग और याद रखेंगे, which is important, which is very very important, and this is a very random information which you should have in your mind. जब इंडिया में 1951 में अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 के बीच में पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो उस टाइम पे जो इंडिया में वोटिंग का एज था वो क्या था, 21 ईयर्स. और अभी हम सबको पता है कि इंडिया में वोटिंग का एज क्या है, 18 ईयर्स. सो अब आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि 21 से जो एज थी 18 ईयर्स कब की गई. ये जो पर्टिकुलर एज है 21 से 18 ईयर की गई, ये बेसिकली की गई थी 1988 में. 1988 में बाय द वर्च्यू ऑफ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो आप याद रखेंगे, बाय द वर्च्यू ऑफ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल by the virtue of 61st Constitutional Amendment Act 1988, the voting age in India was reduced from 21 to 18 years. By the virtue of 61st Constitutional Amendment Act, the voting age was reduced from 21 to 18 years. Now this information is also very very relevant. The reason is very simple, क्योंकि बहुत पूरे इंडिया में सबको ये पता है कि हम 18 साल के होते ही वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. बट ये इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था और उसके बाद जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो वोटिंग एज था दैट वाज 21. सो अब हमें एक इंफॉर्मेशन और पता चल गई हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, हमारे डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फेस्टिवल के बारे में, और उस पर्टिकुलर फेस्टिवल में जो लोग एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको लेकर के जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो हम लोगों ने यहां पे कवर किया. ठीक है, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोगों को याद रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो उस एस्पेक्ट के बारे में बेसिकली हम लोग अभी डील कर लेते हैं. ठीक है, अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने को लेकर के एज सच कोई लॉ नहीं था. देयर वाज नो लॉ टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आपको याद रखना है, एंड द नेम ऑफ द केस इज अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस पर्टिकुलर केस में अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में. इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि सीजेआई को भी सिलेक्शन कमिटी में इंक्लूड कर दिया था. सिलेक्शन कमिटी में किसको इंक्लूड कर दिया गया था, सीजेआई को भी इंक्लूड कर दिया गया था. नाउ पार्लियामेंट डिडंट लाइक दिस पर्टिकुलर जजमेंट. तो पार्लियामेंट तो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ जाता है तो उस पर्टिकुलर जजमेंट को बाईपास करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि पार्लियामेंट कोई डेडिकेटेड लॉ बना दे. सो पार्लियामेंट ने क्या किया कि
टिल 2023, टिल दिसंबर 2023 इंडिया में कोई भी लॉ नहीं था. अब पार्लियामेंट ने टू सुपरसीड दिस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वॉज गिवन इन अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, they have constituted or they have enacted one specific legislation and that particular legislation is very very important. आप सबको याद रखना है, specifically for the students who are appearing in the CLAT and ELIT. अब CLAT और ELIT वाले लोगों के लिए क्यों ये पर्टिकुलर लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये लास्ट जो सेकेंड पार्ट था दिसंबर का, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये लॉ आया था. तो लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. और उस लॉ में बेसिकली क्या सिलेक्शन कमेटी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई कि सिलेक्शन कमेटी का मेंबर कौन होगा. तो अब पहले तो हम सबसे पहले लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ का नाम क्या है. ठीक है, तो लॉ इज बेसिकली चीफ इलेक्शन Chief Election Commissioner. I have to see the exact. I have to see the name of the exact law because this is a long statement. So Chief Election Commissioners and other election commissioners. अब शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा. चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक होता है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioners appointment conditions of office and terms of office. Conditions and terms of office. Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions and terms of offices Act 2023. अब पार्लियामेंट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो कि अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिलीवर किया गया था, उस पर्टिकुलर जजमेंट को सुपरसीड करने के लिए पार्लियामेंट एक नया लॉ लेकर के आती है. उस लॉ का नाम क्या था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिसेज एक्ट 2023. अब इस पर्टिकुलर एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ बना दिया गया. एक सिलेक्शन कमेटी के बारे में डिस्कस किया गया और उस सिलेक्शन कमेटी का बेसिकली काम क्या था कि वो डिसाइड करेगी. वो बेसिकली प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करती थी और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता था कि उसी पर्टिकुलर नाम पे अपना अप्रूवल देता था. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन कमेटी का पार्ट कौन कौन होगा. सो सिलेक्शन कमेटी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अब सिलेक्शन कमेटी एज पर दिस लॉ विच वाज इनैक्टेड इन 2023. सो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से होंगे? सो सिलेक्शन इट इज अ 3 मेंबर कमेटी. याद रखिएगा, सिलेक्शन कमेटी इज अ 3 मेंबर कमेटी. और कौन कौन होगा इस कमेटी में? सो फर्स्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी द चेयरमैन. अब इस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फिर इसके बाद दूसरा मेंबर कौन है? सो अ यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय Prime Minister. And lastly we have leader of opposition in Lok Sabha. And in case, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा के साथ, कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी पार्टी को अगर एक ऑपोजिशन बनाना है या ऑपोजिशन फ्रेम करना है या कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो उसे मिनिमम 10% सीट्स सिक्योर करनी होती हैं लोकसभा इलेक्शंस में. टेक वन एग्जांपल, लोकसभा 18th लोकसभा इलेक्शंस में टोटल 543 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था. सो किसी भी पार्टी को अगर
लीडर ऑफ ऑपोजिशन या ऑपोजिशन क्लेम करना है तो उसे मिनिमम 54 सीट्स सिक्योर करनी होंगी। अब 2014 और 2019 में जो 16th एंड 17th लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें कोई भी पार्टी मिनिमम 54 सीट सिक्योर नहीं कर पा रही थी, इसीलिए इस सिलेक्शन कमेटी में एक रूल और बनाया गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, और अगर ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा नहीं होता है देन द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। जैसे 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस को आई गेस 51 या 53 सीट्स मिली थी, तो 54 के मार्क से वो लोग एक सीट कम रह गए थे, बट इसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी उस टाइम पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे लोकसभा में। तो अब आप ये याद रखिएगा, सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। ये तीन लोग होंगे सिलेक्शन कमेटी में जो डिसाइड करेगी कि इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कौन कौन होंगे। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बढ़ते हैं। तो अब इस इंफॉर्मेशन को भी हम रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, अब जिन 3 लोगों का मैं नाम लेने जा रहा हूं उन 3 लोगों का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैं इसका भी रीजन बता देता हूं। क्योंकि इंडिया में एज सच कोई लॉ नहीं था इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंटमेंट को लेकर के। 2023 में जब ये लॉ इनैक्ट किया गया तो ये 3 लोग बेसिकली पहली बार इस लॉ के अंडर अपॉइंट किए गए थे, सिर्फ इसी वजह से इन तीनों ही लोगों का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 3 लोग कौन कौन से थे? सो फर्स्टली वी हैव राजीव कुमार। अब राजीव कुमार कौन है? सो राजीव कुमार इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कौन कौन से हैं? सो वन इज ज्ञानेश कुमार एंड सेकेंडली वी हैव सुखबीर सिंह संधू। ये 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। राजीव कुमार, द रीजन इज क्योंकि ये 2023 में जो लॉ बनाया गया 2023 में, उस लॉ बनने के बाद ये पहले 3 अपॉइंटमेंट हुए थे उस लॉ के अंडर, इसीलिए इन तीनों ही लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू कौन है? ये बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रखिएगा कि इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना और फॉर इलेक्शन, और इसके अलावा टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसके अलावा इलेक्टोरल रोल रेडी करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को टाइम टू टाइम अमेंड करना, उसमें अगर कोई इंक्लूजन है तो उसे करना, पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को लेकर के ये जो सारा काम है, सिंबल्स का अलॉटमेंट करना, ये सारा काम किसका है? दिस ऑल बिलोंग्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो नाउ विद दिस बेसिकली अब हम ये चीज कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन एंड आउट जितनी भी चीजें थी बिगिनिंग फ्रॉम 1951, फिर 1988 में कैसे वोटिंग का एज कम किया गया, फिर उसके बाद कैसे अनूप बरनवाल का केस आता है, फिर अनूप बरनवाल के केस को सुपरसीड करने के लिए पार्लियामेंट एक नया लॉ लेकर के आता है, फिर उस लॉ के अंडर राजीव कुमार और राजीव कुमार, फिर उसके बाद ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का कैसे अपॉइंटमेंट होता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज इन सारी ही चीजों को आप लोग दिमाग में रखिएगा। 18th लोकसभा इलेक्शंस की वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड आई कैन मेक श्योर एंड आई कैन अश्योर यू गाइज दैट विद दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन फील अ बिट मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब मैं आपसे ये चीज कह सकता हूं कि इसके अलावा जो कोई इंफॉर्मेशन, जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, आप बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन अब हमारी बची रहेगी, हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो ऑन दैट नोट आई विल रैप अप दिस सेशन, और अगर आपको इस सेशन अगर यूजफुल लग रहा है देन डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करिए टू मेक मोर सच यूजफुल कंटेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट एग्जाम। थैंक यू सो मच।